Hello students, how are you all doing? I am Anubhuti Tiwari and I am here with you to crack 2026 board exams. कुछ नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं. I am there with you. Why to fear when I am here? Okay, so let's start, cut to the chase. We'll start with our first chapter of polity, that is power sharing, and I can guarantee you have a copy and pen with yourself right now. Keep understanding everything what I'm speaking with full mind, body, soul into the chapter. And after me explaining this chapter, once I am done with this chapter with you line by line NCERT, I am sure and I can 100% guarantee you, you will need no other video, no other any explanation apart from this. अगर आप अपनी mind, body, senses, soul, if you are putting everything when I'm explaining you this chapter, line by line NCERT, you will need no other refresher, no other video. Just this understanding will be enough to crack and ace your 2026 board exams, which will be starting from 15th of February. So let's start. Okay, so let's start with the chapter power sharing. One second, let me see. Yep. So let's start with the chapter that is power sharing. I am going to cover every single line, every single statement, every single word of your NCERT with you because I have already emphasized and I can emphasize on it n number of times that NCERTs are the core source for your board exams. They are crisp, they are written in a very good form, they are unbiased और NCERT से बाहर questions नहीं जाते हैं. Given that आपकी NCERT की understanding अच्छी होनी चाहिए because NCERT have a certain level of English and they require a certain level of teaching as well कि आपको सही से समझाया जाए. For that I am here with you. बस एक copy pen लेके बैठो and keep understanding whatever I am explaining to you. Okay, so let's start with the chapter that is power sharing. उसके पहले आपको कुछ चीजों से introduce कराते हैं. That is, do you know what a constitution is? Do you know what constitution is? Do you know what democracy is? ये दो words तो अभी आपको जानने ही पड़ेंगे. देखो, constitution को हिंदी में बोलते हैं संविधान. होता क्या है constitution? Constitution is a fundamental principle according to which a country is governed. Constitution कोई एक ऐसा law होता है, कोई एक fundamental principle होता है, एक नहीं कई हो सकते हैं जिनके आधार पर एक country बनती है और उस आधार पर वो country चलती है. कोई fundamental principle जो एक country को आगे लेके चलता है, that is known as constitution. A fundamental principle according to which a country is governed is known as constitution. हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान. वो principles जिनके आधार पर कोई एक देश चलता है, वो कहीं लिखे जाएं या ना लिखे जाएं, बट माने जाएं कि ये principles हैं जिन पे हमारी country चलेगी. That is known as constitution. For India, it is a written constitution जो एक किताब के फॉर्म में लिखा गया है. We have a book, we have Indian constitution in which all the core principles according to which our country should be governed are written in it. So what is constitution? A constitution is a fundamental principle according to which a country is governed. You pause my video and you write these definitions because these definitions will be required in your answer writing. I'll myself make you do answer writing. That time you will require these definitions. So slow down the video or pause it and write these definitions. Now, what is democracy? Democracy is a system of democracy is a system of government in which people choose their own representatives. There can be multiple form of governments. मतलब कैसे एक देश चलता है, कैसे एक देश का सिस्टम चलता है, अलग अलग तरीके से चल सकता है. जैसे पहले मोनार्की हुआ करता था जहां राजा रानी हुआ करते थे, राजतंत्र कहते थे उसको. क्या क्वीन विल रूल द कंट्री और द किंग विल रूल द कंट्री, और फिर उन्हीं के लीनिएज में जो आगे आते जाते हैं वो रूल करते जाएंगे कंट्री को. और वन किंग अनदर क्वीन, सच लाइक दैट किंग्स एंड क्वींस विल रूल द कंट्री. दैट सिस्टम वाज कॉल्ड मोनार्की. डिक्टेटरशिप, जिसको हिंदी में बोला जाता है तानाशाही, जहां एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन कंट्री को रूल करते हैं, दैट इज नोन एज डिक्टेटरशिप. मिलिट्री रूल, जहां एक कंट्री को उस देश की मिलिट्री चलाती है, नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट बट द मिलिट्री ऑफ दैट कंट्री रन्स दैट कंट्री, इज नोन एज मिलिट्री रूल. वैसे ही एक और सिस्टम होता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं. ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है. अब डेमोक्रेसी भी दो
टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज द नेम सजेस्ट, जितने लोग डिसीजन मेकिंग से इफेक्ट होते हैं उतने ही सारे लोग इन्वॉल्व होकर डिसीजन लेंगे। जैसे अगर 100 लोग हैं गांव में तो 100 के 100 आके अपना वोट देंगे और 100 के 100 अपना मत बताएंगे और 100 के 100 डिसीजन लेंगे। दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज इट यूज्ड टू, मतलब ये पहले होता था ग्रीक स्टेट्स में, बट nowadays mostly we have indirect democracy। indirect democracy होता है जहां लोग अपने representatives को चुनते हैं और representatives इन लोगों के behalf पे आगे जाके बात रखते हैं, हम सब, क्योंकि उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। कितनी पॉपुलेशन है, नॉट एवरीबडी कैन गो इनटू पॉलिटिक्स। सेकंड रीजन, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। थर्ड, नॉट एवरीबडी हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट अस। देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो अब हमारे ज्यादातर दुनिया में क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां हम पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं अपने बिहाफ पे कि ये हमारी बातें आगे जाके पार्लियामेंट में रखेंगे किसी भी कंट्री की, अब वॉट एवर द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ दैट कंट्री इज, वहां जाके हमारी बात रखी जाएगी। ये हमारे बिहाफ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दिस इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये कोर चीजें, आपको थोड़ी बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आपकी नींव अच्छी है तो उस पर बिल्डिंग अपने आप अच्छी ही बनेगी। इफ योर बेसिक्स आर गुड देन यू एंजॉय एजुकेशन, यू डोंट टेक इट एज अ बर्डन, बट इफ योर बेसिक्स आर नॉट गुड देन यू गेट ट्रबल्ड विद एवरीथिंग व्हाट यू आर लर्निंग। आपको पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या, आपको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो ऑब्वियसली यू विल स्ट्रगल। जब आप पावर शेयरिंग पढ़ोगे, लेजिस्लेटिव पढ़ोगे, जुडिशरी पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे, मतलब पढ़ाई इज वेरी इंटरेस्टिंग गिवन दैट आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। Okay, so now coming back to the chapter's name, power sharing. अब पावर का खेल क्या है? Power. See, actually, politics of any country holds immense power. Any country, not just India. Any country, किसी भी country की आप दुनिया में बात कर लो, वहां की अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो जो कि राजनीति होती है, in itself contains a lot of power. अब प्ले पूरा इस पावर का ही रहता है। Had power not been in politics, अगर इतनी पावर होती ही नहीं पॉलिटिक्स में तो nobody would have been fighting like cats and dogs to be a part of it. Do you understand? तो ये जो पॉलिटिक्स पावर प्ले हो रहा है ये हमारी कंट्री में बस नहीं होता है, पावर प्ले तो एवरी कंट्री में होता है। दुनिया की कोई भी कंट्री लो, पूरा खेल पावर का ही है, सबको पावर चाहिए। Why? And with power comes immense responsibility, and with power also comes corruption. If you use that power judiciously, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, पर अगर आप उस पावर को गलत तरीके से यूज करते हो तो आप बहुत कुछ बुरा भी कर सकते हो। That's why there is a saying, power corrupts and absolute power corrupts you absolutely. थोड़ी पावर थोड़ा करप्ट बनाती है, अंधी पावर अंधा करप्ट बना देती है। So power play का पूरा गेम है, not just in India but in the entire world. It is all power. अगर पावर इतनी होती ही नहीं पॉलिटिक्स में तो इतनी, if we would not have seen so many chaos. But power is involved. So let's see how this power gets played with the example of two countries, that is Belgium and Sri Lanka. ये सिर्फ दो countries के examples हैं, but now every country has a different set of problem with power play. हर country में कहीं ना कहीं power पे लड़ाई चलती ही रहती है। So let's go. I'll go line by line. Please keep understanding. Keep your civics book with yourself. Keep a copy pen with yourself. Keep marking everything which I am telling you. Keep analyzing everything. बहुत ध्यान से पढ़ना, because I am telling you, अगर आपने ध्यान से ये lecture देख लिया, you need no other lecture. That I can guarantee you. Okay, so power sharing overview. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters, we carry the idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. Moving forward. Belgium and Sri Lanka. Okay, I guess this font is visible. So Belgium and Sri Lanka. First is the story of Belgium and then Sri Lanka. Let's go forward. Belgium.
Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small, what I'm underlining is important for your answers. Belgium is Belgium. Okay. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, and Germany. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% lives in the Wallonia region and speak French language. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% people speak Dutch. People are Dutch speaking. The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community, who got the benefits of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch and the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. Let us compare this to the situation in another country, that is Sri Lanka. This was the situation of Belgium. Belgium is a country in Europe. ये उसका ethnic composition का problem है. देखो, मैं आपको बताऊं, हर country में कोई ना कोई problem हमेशा होती है. No country is problem free. In the world, जितनी भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है. रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर भी, कोई कम्युनिटी के आधार पर, या किसी और चीज के आधार पर, रेशियल फीचर्स के आधार पर, कलर के आधार पर, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर कंट्री में जरूर होती है. कोई ना कोई आधार पर, कहीं पे धर्म के आधार पर लड़ाई हो रही होगी, कहीं पे रिलीजन, कहीं पे लैंग्वेज के आधार पर लड़ाई हो रही होगी, कहीं कुछ अलग अलग कम्युनिटीज होंगी उनके आधार पर लड़ाई हो रही होगी, कहीं रेशियल फीचर्स, कैसे आप दिखते हो उसके आधार पर लड़ाई हो रही होगी, कहीं कलर के आधार पर लड़ाई हो रही होगी, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. तो हर जगह कोई ना कोई डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है. कहीं कास्ट के आधार पर लड़ाई हो रही होगी, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती है. नहीं, अब आपको ये समझना है कि बेल्जियम में किस आधार पर प्रॉब्लम थी? लैंग्वेज के आधार पर प्रॉब्लम थी. नाउ with me, please understand the composition of Belgium. ये आप समझ के चलो, this is your Belgium. बेल्जियम में दो मेजर रीजन्स थे. एक था फ्लेमिश रीजन, और एक था वेलोनिया रीजन. One was the Flemish region and another was the Wallonia region. Now see, the ethnic composition of this small country is complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Flemish region में कितने परसेंट लोग रहते हैं? 59% लोग रहते हैं, and they speak which language? Dutch language. In Wallonia region, another 40% people lives in Wallonia region and speak French language. Wallonia में 40% लोग रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? French language. And out of all these, 1% of the Belgians speak German language. अब दो तीन वर्ड समझो. आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडियन होते हो, बेल्जियम में रहते हैं तो बेल्जियन होते हैं. ये रीजन्स होते हैं. आपकी कंट्री में भी डिविजन्स होते हैं, सबकी कंट्री में डिविजन्स होते हैं ऐसे जोग्राफिकली. तो इनकी जोग्राफिकली दो डिवीजन थे बेल्जियम में. एक था फ्लेमिश रीजन, एक था वेलोनिया रीजन. आउट ऑफ 100%, फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे. वेलोनिया रीजन में कितने परसेंट लोग रहते थे? 40% लोग रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. और 100% में से 1% बेल्जियंस कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? 100% में से 1%. Wallonia 40% and used to 1%. This is 1%. And 40% में से 100% में से 1% बेल्जियंस क्या बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे. नाउ रिपीट विद मी. अगर आपको कोई क्लास कर रहे हो आप और उसका 50% आपको देन एंड देयर याद नहीं रहता है, देन यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. जो भी आप एक क्लास में पढ़ते हो उसका 50% आपको क्लास के साथ ही याद रहना चाहिए. 50% रिवीजन के समय पक्का हो जाता है. Do you understand? So we are again describing what the country was. Let us see what the country was. ये अगर आप बेल्जियम मान के चलो आपका, तो बेल्जियम में एक रीजन कौन सा था? Flemish region. So you can make these diagrams in your paper. One was Flemish region, another was Wallonia region. Flemish had 59% people and Wallonia has 40% people. और फ्लेमिश रीजन में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज. वेलोनिया रीजन में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. और 1% बेल्जियंस स्पोक विच लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज. ये कंट्री का एथनिक कॉम्पोजिशन था. इस कंट्री का composition, 59% people used to live in Flemish region and used to speak Dutch language. 40% people used to live in Wallonia region and used to speak French language. And 1% Belgians used to speak German language.
ठीक है, यही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब इसमें आ गया कैपिटल। कैपिटल क्या था? ब्रसल्स। ब्रसल्स की अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। सी द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूरेट इन ब्रसल्स। ब्रसल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital, because in the capital city Brussels 80% people speak French language and 20% spoke German language. ये जो इनका कैपिटल था इसमें 80% पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। और 20% पीपल क्या बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे। कैपिटल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी भी कंट्री का कैपिटल इज लाइक द व्हाट अ कंट्री रिप्रेजेंट्स। Capital is very important. जैसे in India, when we talk about India on higher levels, international levels, we often correlate it to Delhi. Why? Because New Delhi is our capital. Capital is even more important because it is from where the country is being run. Do you understand? तो Brussels में एक अलग ही प्रॉब्लम थी। 80% people used to speak French language and 20% people used to speak Dutch language. कहाँ? Brussels. Brussels क्या था? Capital of Belgium. अब आप कंट्री में देखो, कंट्री में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोलते थे लोग? कंट्री में मेजॉरिटी कौन थे? डच स्पीकिंग लोग, पर यही माइनॉरिटी थे कैपिटल में। कंट्री में माइनॉरिटी कौन थे? जर्मन्स। कैपिटल में तो वो थे ही नहीं बोलने वाले। नाउ डू यू सी द एथनिक कॉम्पोजिशन? आई एम अगेन रिपीटिंग फॉर यू। बेल्जियम कंट्री थी, बेल्जियम कंट्री हो गई। बेल्जियम में दो रीजन्स थे, फ्लेमिश रीजन, वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% पीपल रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज। वलोनिया रीजन में 40% लोग रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। और 8% बेल्जियंस कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज। दिस वाज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द एंटायर कंट्री बेल्जियम। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? ब्रसल्स में। ब्रसल्स क्या था? कैपिटल ऑफ बेल्जियम। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। दिस वाज द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम। आप समझ रहे हो? आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर तो ये रह रहे थे ऐसे में। सो मच डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बोला हर कंट्री में लड़ाई किसी ना किसी आधार पर होती है, तो लैंग्वेज, रिलीजन, या तो किसी ना किसी आधार पर। इनके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? लैंग्वेज के आधार पर। दिस वॉज द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम ने से डील कैसे किया वो अपन आगे देखेंगे। अब अपन दूसरी कंट्री का कॉम्पोजिशन समझते हैं जो कि है श्रीलंका। यू कैन मेक दीज डायग्राम्स। आई एम जस्ट मूविंग असाइड इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और एनीथिंग। यू कैन मेक दीज डायग्राम्स। आप ये पूरा बना के आ सकते हो पेपर में। इट फेचेस यू मार्क्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये देखो इन्होंने अपने डायग्राम से भी दिखाया है। सी इसमें भी अगर आपको बताएं, ये आपका पूरा ब्रसल्स हो गया। इन्होंने इसको व्हाट दे हैव टेकन दिस एज वलोनिया रीजन। या दिस इज वलोनिया रीजन। वलोनिया रीजन्स had 40% people and they used to speak what? Dutch language. And this was what? Flemish region. ये कौन सा रीजन है? Flemish region। कितने परसेंट लोग? 59% लोग। and they used to speak French language. And 1%, यहाँ पे लिख लो, 1% Belgians used to speak German language. Now the another problem was with Brussels. Brussels was what? The capital of Belgium. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? 80% people used to speak French language and 20% people used to speak Dutch language. ये आप पूरा ऐसा डायग्राम बना सकते हो। आप एक रफ डायग्राम कुछ भी बना सकते हो। दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम, फ्लेमिश रीजन, वलोनिया रीजन। यू कैन मेक अ रफ डायग्राम्स। डायग्राम्स कॉम्प्लीमेंट योर आंसर दैट यू नो हाउ टू एक्सप्लेन योर आंसर। Okay, this was the now what is ethnicity? Ethnic, ये जो बाजू में दिए रहते हैं ग्लॉसरी, एक एक नंबर में डेफिनेशंस में आती है, तो यू शुड बी वेरी गुड विद देम। वन सेकेंड। Coming back, actually I had to put the charger in the laptop. The battery was getting dead. Okay. Coming back to our chapter, coming back, ये जो बाजू में ग्लॉसरी दी रहती है, these will all come as one marker definitions और assertion reason में यही सब आएगा। नहीं तो आपको ये वैसे भी needed रहेगा आंसर्स लिखने में। So you should be very thorough with this glossary. Ethnic, a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. Ethnicity क्या होता है? किसी भी आधार पर जब आप एक फील करते हो, कोई भी सोशल आधार, सामाजिक आधार जिसके आधार पर आप एक फील करते हो, उसको क्या बोला जाता है? एथनिसिटी बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे एथनिसिटी किसके आधार पे थी, लैंग्वेज के आधार पर। जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो अपने आप में खुद को एक मानते थे, जो लोग डच बोलते थे वो खुद को अपने आप में एक मानते थे, जो लोग जर्मन स्पीकिंग थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, वो अपने आप को एक मानते थे। सो दिस इज नोन एज एथनिसिटी। कोई भी सोशल डिवीजन जिसपे आप अपने आप को एक जैसा मानते हो समाज में, दैट इज नोन एज द एथनिसिटी। यू अंडरस्टैंड? मूविंग फॉरवर्ड, ये डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरी बुक की ग्लॉसरी, पूरे बुक का एक एक वर्ड पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस देम। मूविंग फॉरवर्ड, श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं अपन लोग, पर पहले श्रीलंका की कहानी यहां स्टार्ट हो गई थी। सी श्रीलंका, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन। आपने बेल्जियम की कंडीशन समझ ली, अपन दूसरी कंट्री की कंडीशन समझते हैं, which is what? Which is Sri Lanka. Let us compare this to the situation in another country, Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. They can ask you a one marker कि Sri Lanka is a few kilometers away from the southern coast of which state of India? That is Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers, 74%, and the Tamil speakers, 18%. Among Tamils, there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamil. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamil. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, about 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now, let us look at what happened in both the countries. Now, let's talk about Sri Lanka, another country. Sri Lanka, this is Sri Lanka. What was the problem with Sri Lanka? Let's see. If assume this is the map of Sri Lanka, 74% people in Sri Lanka were what? Sinhala speaking community. 75% was Sinhala speaking. Then 18% were Tamils. अब इस तमिल में भी डिस्ट्रीब्यूशन था. Of 18%, 13% were Sri Lankan Tamil, ST, and 5% were Indian Tamil. I'm explaining you what these are. Apart from that, 7% of them were Christians. Now see. So big a मतलब आप खुद देख सकते हो कितना एथनिक कॉम्पोजिशन का प्रॉब्लम है. नाउ सी इफ दिस इज श्रीलंका, ये जो 74% थे, they were Sinhala speaking. Sinhala was a language in Sri Lanka. They were Sinhala speaking people. और अधिकतम इनमें से ये लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? बुद्धिज्म का रिलीजन फॉलो करते थे. फिर नेक्स्ट डिवीजन 18% क्या थे? तमिल्स थे. और उस तमिल्स में से भी 13% वर श्रीलंकन तमिल. जो मैं एसटी लिख रही हूँ दैट इज श्रीलंकन तमिल. श्रीलंकन तमिल मतलब वो तमिल्स जो श्रीलंका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जो श्रीलंका में ही हमेशा से रहते थे, हमेशा से वहीं के थे. दे वर श्रीलंकन तमिल्स. उसमें से भी 5% वर व्हाट? इंडियन तमिल्स. इंडियन तमिल्स मतलब जो इंडिया से श्रीलंका गए थे प्लांटेशन में काम करने अंग्रेजों के समय. कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशंस हुआ करते थे. प्लांटेशन, अभी भी प्लांटेशंस होते हैं. कॉलोनियल पीरियड में इस प्लांटेशन में वर्क करने जो लोग श्रीलंका गए थे इंडिया से, दे वर नोन एज इंडियन तमिल्स. नेक्स्ट, 7% ऑफ द श्रीलंकन्स वर क्रिश्चियंस. Now do you see the ethnic composition? 74% Sinhala speaking, 18% Tamils, of which
13% were Sri Lankan Tamil and 5% were Indian Tamils. Indian Tamils were those जो प्लांटेशन में काम करने colonial period के समय इंडिया से श्रीलंका गए थे. 7% were Christians. Now can you see कितना कॉम्प्लेक्स डिवीजन है. अब वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, पावर प्ले होगा, जो मेजोरिटी होगी, मैक्सिमम टाइम्स द मेजोरिटी वांट टू डोमिनेट द माइनॉरिटी. मेजोरिटी क्या होते हैं, जो संख्या में ज्यादा है. माइनॉरिटी क्या होते हैं, जो संख्या में कम है. अधिकतम क्या होता है कि जो मेजोरिटी संख्या में ज्यादा है वो चाहते हैं वो अपनी विल चलाए माइनॉरिटी पे, ये कह के कि हम नंबर में ज्यादा हैं तो हमारी सुनो. तो बेल्जियम में कौन चला सकता था ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी, डच और फ्रेंच दोनों, क्योंकि एक थे ब्रसेल्स में मेजोरिटी में, एक थे कंट्री में मेजोरिटी में. तो जो कंट्री में मेजोरिटी में थे वो कहते कंट्री में माई चलाओ, जो कैपिटल में मेजोरिटी में थे वो कहते हमारी कैपिटल में हमारी बात सुनो, क्योंकि हम मेजोरिटी में. और श्रीलंका में तो और मतलब क्लियर विजिबिलिटी थी कि 74% से इवन बिगर मेजोरिटी है, तो फिर सीधा सीधा कह देते कि हमारी ही मेजोरिटी चलेगी. बट दिस इज नॉट हाउ गुड सिस्टम्स वर्क, क्योंकि देश सबका होता है, बी इट मेजोरिटी बी इट माइनॉरिटी. तो माइनॉरिटी के कंसर्न्स को बल्कि समझना मेजोरिटी का ही कर्तव्य होता है. In fact, majority should be responsible to even think about the minority because they are less in number. They can be dominated. उन पे domination कर सकते हैं. तो बल्कि majority should put themselves in the shoes of minority and understand उनके concerns क्या हैं, उनकी problem क्या है, उनको कैसे address किया जा सकता है. क्योंकि आप तो वैसे भी majority में, आपकी बात तो चलने के chances हैं ही, be it any country. So in fact, majority should be responsible to understand what minority is feeling. Not just shoving them off कि आप तो माइनॉरिटी में हो आप तो निकलो. नहीं, देश सबका होता है, जो माइनॉरिटी में, जो मेजॉरिटी में. कंट्री इज फॉर्म्ड विद एवरीबॉडी. डू यू अंडरस्टैंड? अब इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम कैसे डील करी, आगे वो देखते हैं अपन लोग. वन मोर थिंग, यहां पे ये majoritarianism in Sri Lanka. What does majoritarian? Now you'll see two different words. What are the two different words that you'll see? You will see two different words that are, एक आप देखोगे accommodation in Belgium, accommodation, और आप दूसरा word देखोगे majoritarianism in Sri Lanka. आप दो डिफरेंट वर्ड देखोगे, एक देखोगे आप अकोमोडेशन इन बेल्जियम और दूसरा देखोगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. और जो दो वर्ड्स का मतलब समझ गया वो ये भी समझ जाएगा कंट्रीज ने कैसे डील किया होगा अपनी अपनी प्रॉब्लम. अकोमोडेशन का मतलब होता है सबको साथ में अकोमोडेट करना, सबको साथ में देखना. जैसे एक क्लास जब मैं पढ़ाती हूँ, देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर अ बिट वीक, क्योंकि उनका बेस बहुत वीक रहा. कुछ होते हैं दे क्लिक लाइक दिस, बट सबको साथ में लेके चलना है. तो कभी कभी अपन बार बार एक्सप्लेन करते हैं सो दैट द वीकेस्ट ऑफ द वीक अंडरस्टैंड्स. अकोमोडेशन का मतलब ही होता है सबको साथ में लेके चलना. और मेजोरिटेरियनिज्म एज द नेम सजेस्ट, मेजोरिटी का चलना. जो दो वर्ड समझ गया वो ये भी समझ जाएगा बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ था बिना पढ़े, क्योंकि हेडिंग says it all. That's why I say NCERTs are very important. Every word in NCERT is a well thought word. NCERTs are unbiased books. मतलब there is no alternative to NCERT. इसीलिए NCERT पढ़ो. Accommodation in Belgium, majoritarianism in Sri Lanka. Accommodation in Belgium in itself suggests कि बेल्जियम में उन्होंने सबकी बात सुनी होगी, क्योंकि अकोमोडेशन का मतलब ये सबको साथ में लेके चलना, सबको साथ में अकोमोडेट करके चलना. मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एज द नेम सजेस्ट, मेजोरिटी की बात सुनी गई होगी, क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. You understand? Now let's study how this happened. ये तो समझ आ गया इन्होंने किया क्या होगा, अब हुआ कैसे वो समझते हैं. Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. Keep remembering this, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस के एक साल बाद ही श्रीलंका की इंडिपेंडेंस हुई थी. We got independent in 1947. They got independent in 1948. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sela community independent किससे हुए थे? Colony. It was also a colony. तो Britishers से independent हुए थे. The leaders of the Sela community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sela supremacy. In 1956, an act was passed to recognize Sela as the only
official language, thus disregarding Tamil. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Okay, all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. तो इन्होंने क्या किया? Now let's see. Majoritarianism in Sri Lanka, 1948. पहला question. Every line of NCERT is going to be your question in your board exams. Pick 10 years paper, 20 years paper, 30 year paper. पेपर में एक भी question NCERT के बाहर नहीं जाता है. Given that आपकी NCERT की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो पहला क्वेश्चन क्या? श्रीलंका कॉलोनियल रूल से कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1948. 1948 में इंडिपेंडेंट होने के बाद श्रीलंका ने कैसे मेजर्स अपनाए? मेजोरिटेरियन मेजर्स उठाए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. जब आपको लिखने आए, write majoritarianism in Sri Lanka, write a brief note on majoritarianism in Sri Lanka. You have to write points. तो पहला क्या कि जैसे ही आप इंडिपेंडेंट हुए श्रीलंका, उन्होंने उसके बाद मेजोरिटेरियन मेजर्स यूज किए. मतलब ऐसे मेजर्स लगाने लगे वो सरकार में इंडिपेंडेंट होने के बाद जहां Sinhala supremacy देखे. Sinhala were the majority in Sri Lanka. As you remember, 74% people were Sinhala speaking. Sinhala was a language. तो उन्होंने ऐसे मेजर्स फॉलो करे जहां Sinhala सुप्रीमेसी आए, Sinhala लोगों को ऊपर चांसेस मिले, Sinhala लोगों को फेवरिज्म मिले. वो होते हैं मेजोरिटेरियन मेजर्स. Second, in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. Second point. 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें Sinhala को only official language बनाया गया. Only. Keep your eyes on the word only. Only official language. आप only किसी भी एक लैंग्वेज को आप कैसे अकेले ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो? इमेजिन यू लिव इन अ स्टेट जहां कोई एक लैंग्वेज बोली जाती है, कल से वहां पे हटा के कोई और लैंग्वेज ऑफिशियल कर दी जाए. एक दिन में कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकता. एंड दिस वाज बैक व्हेन 1948 का समय, 1950s का समय. The literacy rate and the education ratio was also not very high. कोई एक दिन में एक पूरी नई लैंग्वेज कैसे सीखेगा? Thus disregarding Tamil. Sinhala को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और बाकी तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया. अब जो तमिल बोलते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होगी कि वो एक दिन अचानक से Sinhala बोलना कहां से सीख लेंगे? Their language is just thrown apart. Third, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university and government jobs. Third point. वो ऐसी गवर्नमेंट में पॉलिसीज करते थे जहां Sinhala स्पीकिंग को जॉब्स मिले, यूनिवर्सिटीज में जगह मिले, उन्हीं को प्रेफरेंस मिले. जस्ट बिकॉज यू स्पोक Sinhala, you belong to Sinhala community, you got favoritism, you got favors गवर्नमेंट जॉब्स में भी और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी. A new constitution stipulated that state shall. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना. जब भी कोई कॉलोनियल रूल से आजाद होता था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता था. मतलब दिस इज द पैटर्न. आप एक रेवोल्यूशन करते हो, आपका कंट्री एक नेशनल स्ट्रगल करता है, आपके जिससे भी रूल हो रहे हो उससे इंडिपेंडेंट होते हो, फिर आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो. तो जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, a new constitution stipulated that state shall foster, protect and foster Buddhism. एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का और फोस्टर करने का, मतलब उसको आगे बढ़ाने का, उसे प्रॉस्पर करने का, केवल एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है और फोस्टर करना है. किसने लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने. द लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल जिससे कंट्री चलती है. उसी में लिख दिया कि एक ही रिलीजन को बस प्रोटेक्ट करना है. तो बाकी रिलीजन तो अपने आप डिसरिगार्ड हो गए. एज यू रिमेंबर, most of the Tamils were Hindus or Muslims and there were 7% Christians. तो इनका रिलीजन तो सीधे साइड में हो गया. आपने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि most of the Tamils were either Hindus or Muslims और 7% Christians थे. तो ये जो तीन रिलीजन थे तो बाहर फेंक गए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख दिया आपको प्रोटेक्ट और फोस्टर करना है सिर्फ बुद्धिज्म को. सिर्फ में प्रॉब्लम है, ओनली में प्रॉब्लम है. सबको प्रोटेक्ट और फोस्टर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक को करो प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, फिर ये फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन्स. ये सब होगा तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन तो आएगी. एलियनेशन का मतलब होता है एलियन जैसा फील होना. Do aliens will feel normal with humans? No, not at all.
दैट इज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। तो श्रीलंकन्स को क्या लगा, स्पेशली श्रीलंकन तमिल्स, चलो तमिल्स को सबको लगा होगा, तमिल्स को भी लगा होगा, क्रिश्चियंस को भी लगा होगा, पर तमिल्स में भी एक थे इंडियन तमिल और एक थे श्रीलंकन तमिल। ज्यादा बुरा किसको लगा होगा, श्रीलंकन तमिल को, क्योंकि ये तो इन्हीं की कंट्री थी, ये तो इनकी भी बाद में आके तो ये उसी कंट्री के हो गए थे इंडियन तमिल्स। पर चलो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते, ये तो चलो इंडिया से आए थे फिर श्रीलंका में सेटल हुए, तो कह दो ये हमारे थे ही नहीं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट नहीं थे, कहने की बात, बट ये तो आपके ही थे, नहीं तो और बुरा लगेगा, बिकॉज दे वर श्रीलंकन तमिल्स, दे वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ ओरिजिनल श्रीलंका। So it developed a feeling of alienation among Sri Lankan Tamil. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Tanla leaders were sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored them. उन्हें सही लग रहा था, तमिल्स को क्या लगा कि गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हमारी नहीं सुन रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, हमारी लैंग्वेज को आप बंद कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे विल फील एलियनेटेड इन देयर ओन कंट्री। Okay, this is the meaning of majoritarianism. Majoritarianism, a belief that the majority community should be able to rule the country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. Majoritarianism का मतलब होता है जब एक मेजॉरिटी ये सोचती है कि उसका अधिकार है, उसका हक है देश को अपने हिसाब से या कुछ को भी अपने हिसाब से चलाने का, माइनॉरिटीज की नीड्स और इंटरेस्ट को साइड में रखने का, जस्ट बिकॉज वो नंबर में ज्यादा है। दैट इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म। Do you understand? Moving forward, आप इसमें पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। Moving forward. The relations between the Sinhala the relations. The relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. तमिल और सिंहलास के बीच के रिलेशन स्ट्रेन हो गए, खराब हो गए, तो ऑब्वियसली होते, आप माइनॉरिटी की सुनोगे ही नहीं, उनको डायरेक्टली आप डिसरिगार्ड कर दोगे, तो ऑब्वियसली रिलेशंस खराब होंगे। आगे, the Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. But their demand was for more autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam, that is state, in northern and eastern parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, and economic life of the country. It ended in 2009, but the repercussions of it are still felt in Sri Lanka. Now let's see हुआ क्या। ऑब्वियसली किसी का आप लैंग्वेज नहीं देख रहे हो, आप रिलीजन नहीं देख रहे हो, आप उनको, चलो लैंग्वेज रिलीजन भी साइड रख दो अगर अपन, तो आप उनकी रोजी रोटी भी छीन रहे हो, आप उनको जॉब्स नहीं लेने दे रहे हो, आप उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस में पढ़ने ही नहीं दे रहे हो, कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, तो हाउ विल अ पर्सन सर्वाइव, हाउ विल द पीपल सर्वाइव। फिर पॉइंट हमेशा हर कंट्री में फिर वो क्या होता है, एंगर बनता जाता है, और एक पॉइंट पे वो एंगर इतना बढ़ जाता है, इट बर्स्ट। So it bursted. तमिल्स देखते गए उनके रिलेशन से खराब हुए, तो उन्होंने स्ट्रगल्स लॉन्च किए अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने। उन्होंने बोला हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो, हमको भी अपॉर्चुनिटीज दो, हमको भी एजुकेशन लेने दो, हमको भी जॉब्स में आने दो। बट नहीं, जो गवर्नमेंट थी वो डिनाई करती गई, उनके रेपिटेडली बार डिनाई करती गई उनके डिमांड्स को, ना उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया, ना उनको अपॉर्चुनिटीज दी, ना उनको एजुकेशन में आगे आने दिया। बढ़ते गए, लड़ाई चलती गई, एंड देन दे डिमांडेड अ सेपरेट तमिल ईलम, दैट इज द तमिल स्टेट। दे सेड अगर आप हमें आपकी श्रीलंका कंट्री में नहीं दे सकते हो चीजें, तो फिर आप हमारा स्टेट अलग बना दो, हमें बिल्कुल एक अलग कंट्री बना दो, दैट इज तमिल ईलम, तमिल स्टेट। ईलम इज अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर स्टेट। हमें अलग कर दो, हमारा एक अलग बनाने दो, हम जो ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं हमारी अलग कंट्री बना लेंगे, हम अलग से रह लेंगे। They asked that, तो उसको भी डिनाई कर दिया होगा ऑब्वियसली।
So आगे, the distrust between the two communities turned into a widespread conflict and it soon turned into a civil war. वॉर होता है जब आपका दूसरी कंट्री से हो, वन कंट्री फाइटिंग अगेंस्ट अनदर कंट्री इज अ वॉर. सिविल वॉर इज जब एक कंट्री के ही अंदर कोई भी दो ग्रुप्स या कम्युनिटीज या किसी भी आधार पर कंट्री के ही अंदर वॉर टाइप की सिचुएशन आ जाए या इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए, दैट इज नोन एज सिविल वॉर. तो कंट्री के ही अंदर लड़ाई हो गई कम्युनिटीज के बीच में. एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. Obviously, war brings no peace, never. No war brings peace. That's why good and intelligent people, diplomats, foreign policy experts, they always negate war. वॉर के लिए मना करते हैं जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, बिकॉज वॉर ब्रिंग्स पीस टू नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी. फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, लोगों की जान जाती है, बच्चों की जान जाती है, फीमेल्स की जान जाती है, एल्डरली मैन, पीपल लूज लाइव्स, देयर इज डिस्ट्रक्शन. वॉर कैन नेवर ब्रिंग पीस, वॉर कैन ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. तो ऑब्वियसली इतनी सारी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई, श्रीलंका की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लड़ाइयां हुई एंड एवरीथिंग हैपेंड. अभी तो आप बहुत कम लेवल पे पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ी कहानी है. एंड मल्टीपल थिंग्स आर रिलेटेड. इवन इंडिया वाज रिलेटेड इन अ सर्टेन इनडायरेक्ट वे इन दिस वॉर. बहुत कुछ हुआ था. तो इट एंडेड इन 2009. दिस वाज श्रीलंका. एंड श्रीलंका अभी तक भी इन लड़ाइयों के रेपरकशंस पे कर रहा है. 2029 में ही श्रीलंका में वर्स्ट, 2029 कह रही हूं, 2022 में ही श्रीलंका सॉ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस. द प्रेसिडेंट हैड टू फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री. तो श्रीलंका अभी भी इसके रेपरकशंस दे रहा है. तो ऑब्वियसली यू कैन सी वॉर ब्रिंग्स पीस टू नन. लड़ाइयां किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं लाती है. इट इज द पावर प्ले. ये जो पावर प्ले चलता रहता है, धर्म पे लड़वा दो, कास्ट पे लड़वा दो, कम्युनिटीज पे लड़वा दो, द पार्टीज whoever they are involved, the people they get benefited. आप बैठे रहते हो, नॉर्मल फैमिलीज मरती है, नॉर्मल फैमिलीज को प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल फैमिलीज सफर करती है, नॉर्मल जनता सफर करती है, नॉर्मल जनता मरती है. नो लीडर्स गेट किल्ड, नो लीडर्स गेट किल्ड. वो तो अपने बच्चों को बाहर आउट ऑफ इंडिया भेज देंगे पढ़ने. आपके बच्चे मरते रहते हैं कंट्री में, आपके बच्चे लड़ते रहते हैं, आप पागल होते रहते हो, एंड पावर प्ले हैपेंस just because you don't take the decision wisely. Now next, what's wrong if the majority community rules? If Sinhalas don't rule in Sri Lanka, where else will they rule? I don't know why schools don't teach these cartoons. These cartoons speak very good things. मतलब सही बात है एक तरीके से अगर आप समझो तो. अगर सिल्ला कम्युनिटी श्रीलंका में नहीं रूल करेगी तो कहां करेगी? What's wrong if the majority community rules? If Silla don't rule in Sri Lanka, where else will they rule? बट द आंसर ये पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में आपको कार्टून्स वगैरह, बल्कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. टेलिंग एनसीईआरटीज आर नॉन नेगोशिएबल. समझो कि दे आर पुटिंग थॉट्स इन योर माइंड. सीड्स डालते हैं आपके दिमाग में ये लिख के कि हाँ आप सोचो कि कभी आपको दिमाग में आएगा कि जो मेजॉरिटी है वो उस देश में नहीं रूल करेगा जहां वो मेजॉरिटी है, तो वो कहां रूल करेगा फिर? सही बात है, सोचने की बात है. बट ऐसा कहां लिखा है कि मेजॉरिटी को हमेशा रूल ही करना पड़ेगा? सब साथ में भी तो रह सकते हो. द आंसर टू दिस इज वेयर इट इज रिटन दैट इफ यू आर अ मेजॉरिटी दैट मींस यू हैव पावर कि आपको रूल मेजॉरिटी वाइज करना होगा. No, you all can live happily, you all can live accommodated, you all can live together, you all can live as a happy country, you all can think about each other कि इस कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है तो हम खुद को चेंज करें, इस कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है तो हम खुद को चेंज करें, and you can live happily. But these thoughts like the majority यहाँ नहीं रूल करेगी तो कहाँ नहीं रूल करेगी, ये सब politics puts in your head. Moving forward. As the name suggests, accommodation in Belgium. See, let's see what happened in Belgium. श्रीलंका की कहानी समझ आई? श्रीलंका की आपको पूरी कहानी समझ आ गई. वहां पे क्या एथनिक कॉम्पोजिशन था, वहां क्या प्रॉब्लम्स हुई, वहां की सरकार ने उसको कैसे डील किया, and hence they ended up majoritarianism in Sri Lanka, which ended with a civil war in 2009. Now Belgium की कंडीशन आपको याद है, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, 1% जर्मन स्पीकिंग, ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग, 20% डच स्पीकिंग and everything. Now let's see how this country handled its problem.
that is accommodation in Belgium. Accommodation का मतलब ही होता है एक साथ सबको रखना. Now see, the Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. The first point, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. Okay, second point, many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. Third point, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the country or in the capital. अब आप इधर पे देखिए, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने पहले तो ये आधार बनाया कि हमें अपनी कंट्री का विभाजन नहीं होने देना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देना है, टूटने नहीं देना है, हम सबकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. द थॉट इज ओनली इंपॉर्टेंट. थॉट ही इंटेंट ही सही आया कि हम अपने लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, हम सारी कम्युनिटीज की बात सुनेंगे. जब आपके दिमाग में थॉट ही हो कि हम सबकी सुनेंगे तो यू वर्क आउट वेल ओनली. जो मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं वहां थॉट ही होता है कि सिर्फ मेजॉरिटी की सुनी जाए, सिर्फ मेजॉरिटी की बात आगे बढ़ाई जाए. इट्स द इंटेंट व्हिच मैटर्स. इनका इंटेंट ही था कि हम सबकी बात सुनेंगे, हम किसी को परेशानी नहीं होने देंगे. हेंस दे केम आउट विद अकोमोडेशन इन बेल्जियम. एंड अकोमोडेशन इज सबको साथ लेके चलना. So what happened between 1970 and 93? They amended their constitution 4 times to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. This is the first point. 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया. अमेंड का मतलब होता है उसमें चेंजेस लाना. अगर उन्हें लगा ये गड़बड़ है, ये लड़ाई करवा देगा, उसको चेंज किया. ये गड़बड़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको चेंज कर दिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है, इसको चेंज कर दिया. 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि देश ना टूटे, सबकी बात सुनी जाए. पहला पॉइंट, the arrangement they worked out in different forms. अब अरेंजमेंट में क्या वर्क किया चेंजेस में, उसके कुछ पॉइंट्स है. पहला पॉइंट, second point, Constitution prescribes that the number of Dutch-speaking and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of the majority of the members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. केंद्र की सरकार 3 लेवल पे सरकार होती है. 2 लेवल पे तो हर ही कंट्री में होती है मोस्टली, पर इफ आई से 3 लेवल पे सरकार होती है. लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र की सरकार इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी केंद्र की सरकार में इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे, क्योंकि 2 मेजर स्पीकिंग कम्युनिटीज थी, डच और फ्रेंच स्पीकिंग. तो केंद्र लेवल पे दोनों स्पीकिंग कम्युनिटीज के इक्वल मिनिस्टर्स होंगे नंबर में. समझ आया. और कुछ लॉज पे दोनों की सहमति चाहिए, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स की सहमति. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज कौन कौन सी 2 लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पर. तो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रेंच और डच दोनों की सहमति जरूरी होगी. कोई भी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं लेगा. यूनिलैटरली का मतलब होता है अकेले. एक इंसान डिसीजन अकेले दम से डिसीजन नहीं लोगे, आपको दोनों की सहमति चाहिए. दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रेंच और डच स्पीकिंग, जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी कुछ लॉज तो पास ही नहीं होंगे. उन पे तो स्पेशल पावर लॉज है. पहला ये ने किया. दूसरा, दिस विल बी योर थर्ड पॉइंट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर. Many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. जो next level of government बनी state government, उसको बहुत सारे ऐसे पावर मिले जिसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है. जब भी किसी की राज्य की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर पाती है. If state governments are completely subordinate, अधीन रहेंगे केंद्र सरकार के, तो अगर केंद्र सरकार का मन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे देगा, हेल्प कर देगा, और नहीं है मन तो स्टेट गवर्नमेंट बैठी रहेगी और स्टेट के लोग बैठे रहेंगे. So they gave some powers to state government which were independent to the central government. कि आपको अगर राज्य में काम करना है आप करो. State governments were not subordinate to the central government. ये अधीन नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट के. They were independent working bodies. Next, 4th point.
ब्रसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज, ब्रसेल्स में अलग गवर्नमेंट बनाई गई, ब्रसेल्स में अलग गवर्नमेंट बनाई गई ना। इमेजिन कितना, मतलब इन्होंने जितना कॉम्प्लिकेटेड इनका स्ट्रक्चर था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो इन्होंने समाधान अपनाया, बट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड समाधान, एंड इट वर्कड वेल एंड इट इज स्टिल वर्किंग वेल। अभी तक लड़ाई नहीं हुई बेल्जियम में इस आधार पे। जो आप समझ नहीं पा रहे हो उसमें वो रह रहे हैं और उसमें फॉर्मुलेट भी की उन्होंने पॉलिसी, और उसमें अभी तक लड़ाई भी नहीं हो रही है, मतलब लीडर्स गुड। सो नाउ ब्रसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रसेल्स में उन्होंने अलग गवर्नमेंट बनाई क्योंकि ब्रसेल्स की प्रॉब्लम अलग थी, वहां पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे, वहां अलग गवर्नमेंट थी और वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन बोला कि ब्रसेल्स में भी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे नंबर में। और ब्रसेल्स में वो क्यों मान गए, क्योंकि बाकी जो डच स्पीकिंग देश में मेजोरिटी थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मान गए थे। जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी में थे कंट्री में वो पूरे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान गए, तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कैपिटल में मेजोरिटी में थे वो कैपिटल में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे मान गए। म्यूचुअल आपस में एक दूसरे का, ये कंट्री में मान गए इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, जबकि ये कह सकते थे हम तो मेजोरिटी हैं हमको ज्यादा सीट दो, पर नहीं, ये मान गए देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये ब्रसेल्स में कह सकते थे हम तो इवन बेगर मेजोरिटी है 80% तो हमें और ज्यादा सीट दो, पर नहीं, ये फिर ये देश में इक्वल सीट्स पे मान गए। इट वर्क्स बोथ वेज, इन्होंने देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन माना, इन्होंने ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन माना, दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे को समझा। आगे what happened next, these are 4 points, first, second, third, fourth. When you will write answers you will require pointers, you can take a screenshot. आगे नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पहला पॉइंट उसको कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पॉइंट, apart from the central and the state government there is a third kind of government, this is known as community government, is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. एक और चीज करी इनने, क्या बनाई इनने, they made community government just like we have local government, इन्होंने वहां community government बनाई थर्ड लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड दे आल्सो मेड कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्योंकि अगर एक एग्जांपल दे, दिल्ली में बैठ के हाउ कैन एनीबॉडी नो मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही इनके ब्रसेल्स में बैठ के हाउ कैन दे नो कि किसी भी पार्ट के फ्लेमिश या वेलोनिया रीजन की एक छोटी सी सिटी के छोटे से गांव में किस लैंग्वेज के आधार पर प्रॉब्लम हो रही है। Hence they made what? Community government. कितनी कम्युनिटीज का, एक फ्रेंच कम्युनिटी का, एक डच कम्युनिटी का और एक जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, तीनों की एक गवर्नमेंट के ग्रुप्स बनाए जहां वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं। अगर फ्रेंच स्पीकिंग को कोई प्रॉब्लम है दे कैन पुट द थिंग, इफ द डच स्पीकिंग हैव अ प्रॉब्लम दे कैन पुट द थिंग, इफ द जर्मन स्पीकिंग पीपल हैव द प्रॉब्लम दे कैन पुट द थिंग, ताकि उसका समाधान लाया जा सके। बिकॉज ग्राउंड लेवल की समस्या समझने ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ता है। Nobody can sitting in the capital can know what is happening on ground level in any village, in any district, in any state of that country. तो ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई कि अगर किसी भी कम्युनिटी को दिक्कत हो रही है सो दैट दे कैन पुट द थिंग फॉरवर्ड, तो इनकी बात एड्रेस की जाए, फिर वो आगे जाए तो पूरा देश एड्रेस उसको कर पाए। दिस इज हाउ दे हैंडल्ड द प्रॉब्लम इन बेल्जियम। आगे, you might find the Belgium model very complicated. It indeed is. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic line. When many countries of the Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarters. Obviously, इतने जो अपने देश को इतना, मतलब ये आपको समझने में प्रॉब्लम जा रही है, ये सिस्टम आपको इनका एथनिक कॉम्पोजिशन समझने में दिक्कत आ रही है, आपको इनका फंक्शनिंग जैसे इस देश ने अपनी प्रॉब्लम हैंडल की वो समझने में दिक्कत जा रही है। सोचो उन्होंने तो वो प्रॉब्लम में रहे हैं, उसको समझा है, उसका समाधान निकाला और उस समाधान में रह रहे हैं, एंड दे हैव नॉट फॉट, एंड स्टिल बेल्जियम इज वर्किंग एज अ गुड कंट्री।
तो जस्ट इमेजिन, आपको समझने में दिक्कत आ रही है पर उन्होंने तो अपने देश को संभाल लिया। वो पार्टीशन हो सकता था, कंट्री टूट सकती थी, दे मैनेज नॉट टू ब्रेक देयर कंट्री। फिर जब यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन ईयू एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का, इसमें बहुत सारी कंट्रीज रहती है। तो ये जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसके हेडक्वार्टर्स के लिए क्या चुना गया? ब्रसेल्स को चुना गया। ऑब्वियसली such peacemaking capital will be chosen as the headquarter of European Union. This was their example. Do you understand? I hope you might have understood. आगे जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ बोलना है, ये देखिए। So you are saying that sharing of power makes us more powerful. Sounds odd. Let me think. I'm telling you, they plant good seeds in your head. इधर कितनी अच्छी बात बोली है। So you saying that sharing of power makes us more powerful, क्योंकि बेल्जियम में पावर शेयर करके ही तो वो पावरफुल बने, देश नहीं टूटा। और वहां श्रीलंका में एक जगह पावर देके तो देश टूट गया। Obviously this is a paradox. Paradox होता है कुछ totally contrasting, but this is right. Sharing of power makes you more powerful. That's why in schools you are taught virtues like sharing is caring. क्योंकि आप शेयर करते हो तो आप सबकी सुनते हो, तो फिर सब साथ में रहेंगे। या तो आप लड़ो, वॉर करो, सिविल वॉर करो, एंड लेट द कंट्री बी डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, एवरीथिंग। वी शुड मतलब हमको तो वो ही आगे बढ़ाना चाहिए, पीस, हार्मनी, एवरीथिंग। आगे नाउ what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of a country is possible only by respecting feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of a country and eventually lead to the partition of the country. This I am adding from my side. बेल्जियम में उन्होंने समझा कि अगर हमें देश चलाना है, अगर देश को टूटने से बचना है, तो हर कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर कम्युनिटी ने मिलकर देश को बनाया है। नो सिंगल कम्युनिटी हैज मेड अ कंट्री। सबका ब्लड रहता है, सबका एफर्ट रहता है, सब नेशनल स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहते हैं। तो नेशनल स्ट्रगल के बाद आप एक कंट्री, एक कम्युनिटी को नहीं प्रेफरेंस दे सकते हो। This Belgium leaders realized and they came out with a setup जहां सब कुछ वर्कआउट कर गया। But Sri Lanka didn't understand that, and they gave preference to the majority and eventually led to war, civil war inside their own country, जिसका repercussion वो आज तक पे कर रहे हैं। That's why power sharing is desirable. Why power sharing is desirable? Power sharing क्यों अच्छा है, क्यों desirable है, क्यों अच्छा हो सकता है? Let's understand that. Why power sharing is desirable? One second. Okay, why power sharing is desirable? Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Pehla point. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order. Second point, इसमें stability of political order is important. यहाँ पे reduces possibility of conflict को reduce करता है. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. This is the third point. Okay, there is a second deeper reason for why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. ये हो गया पहला point. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Okay, this is second point. People have a right to be consulted on how they needs to be governed. This is the third point. A legitimate government is one where citizens through participation acquire stake in the system. Fourth point. Let us call the first set of reasons prudential and the second set of reasons as moral. Moral reasons for power sharing will bring out better outcomes. Moral reasons emphasize. These are what moral reasons and these are what prudential reasons.
prudential reasons and moral reasons. Why power sharing is desirable? अपने आप में क्वेश्चन आएगा, why power sharing is desirable? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? उसके दो सेट ऑफ रीजंस होते हैं. एक होते हैं मोरल रीजंस. मोरल होता है कॉन्शियस के आधार पर, जो आपकी अंतरात्मा होती है उसके आधार पर क्या सही क्या गलत. इफ 100 रुपीज नोट इज केप्ट, जो आपका नहीं है, तो मोरल रीजन होता है कि आपका है ही नहीं, तो ऑनेस्टली आप उसे नहीं उठाओगे बिकॉज इट इज नॉट योर्स. अंदर से कॉन्साइंस रहता है ऑनेस्टी का, वो होता है मोरल रीजन कि हम ये नहीं उठाएंगे. और प्रूडेंशियल रीजन होता है फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर रीजन कि वो आपका है ही नहीं तो आप उसे उठाओगे कैसे. इफ 100 रुपीज नोट इज केप्ट, उसके दो रीजन होंगे कि उसे ना उठाया जाए. मोरल रीजन, कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा बोलेगी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इफ आई शुड नॉट डू दिस रॉन्ग, आई शुड नॉट बी अ थीफ, ये हो गया मोरल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन, फैक्ट के आधार पर, वो आपका है ही नहीं तो आप क्यों लोगे उस पैसे को. ये होते हैं मोरल और प्रूडेंशियल रीजन. तो प्रूडेंशियल रीजन तथ्यों के आधार पर क्या रीजन है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है. पहला, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है. जैसे अपन ने बेल्जियम में देखा, सबकी बात सुनी तो लड़ाई क्यों होगी. व्हेन एवरीबॉडी इज हर्ड, व्हेन एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड, नोबडी फाइट्स. जहां किसी को सुना नहीं जाता है वहां लड़ाई होती है. सेकेंड, स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर, स्टेबिलिटी रहती है. स्टेबिलिटी कैसे होगी? जब लड़ाइयां ही नहीं होंगी देश में, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होंगे, तो अपने आप स्टेबिलिटी होगी. अगर आपके देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं तो आप कब स्टेबल होगे कि आप अपने देश को आगे बढ़ा सको. तो स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर. तीसरी बात, इंपोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी लुक्स लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन. ये जो मेजॉरिटी की बात सुनाई जाती है माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करके कि नहीं हम मेजॉरिटी हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी, ये शॉर्ट रन में अट्रैक्टिव लगता है. कह रहे हम तो मेजॉरिटी थे, हमारी बात तो सुनी जाएगी, हम तो नंबर में ज्यादा है. लॉन्ग रन में पार्टीशन हो जाता है, लॉन्ग रन में देश टूट जाता है. तो एक प्रूडेंशियल रीजन है कि शॉर्ट रन में अट्रैक्टिव लगता है बट लॉन्ग रन में होता नहीं है. दीज आर प्रूडेंशियल रीजंस. तथ्यों के आधार पर ये रीजन है कि एक्चुअली व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड. पर मोरल रीजन, कॉन्शियस, अंतरात्मा के आधार पर, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? A system of government in which people choose their representatives. उनमें से कुछ पीपल को आप हटा थोड़ी सकते हो. क्या ये नहीं चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव, पर इतने चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव. ये मेजॉरिटी है तो इन्हें रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, पर ये मेजॉरिटी नहीं है तो इनको रिप्रेजेंटेटिव चुनने का आधार नहीं है. सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. एसेंस है डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग. बांटो पावर ताकि सब अपने लीडर्स चुन पाए, ताकि सब देश में अकोमोडेट हो पाए. पहला मोरल रीजन. सेकंड, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Power sharing, एक democratic rule, एक डेमोक्रेसी में उन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में जो उस डिसीजन से इफेक्ट होते हैं. अगर एक देश में आप सेहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो तो इसका इफेक्ट उन पे भी तो हो रहा है जो सेहला नहीं बोलते हैं. जो बोलते हैं चलो उनको तो लगेगा ठीक है हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल बन गई, वेल एंड गुड, पर जो नहीं बोलते उनका कौन सोचेगा. Nobody can learn a different religion in a day. You cannot impose religion, you cannot impose language, you cannot impose things on people which are core to their heart. So very essence ही है कि भैया आप पावर शेयर करो उनसे डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन से इफेक्ट होते हैं. एटलीस्ट people having a right to be consulted, people have a right to be consulted how they want to be governed. जो जिन पे आप गवर्न कर रहे हो, जिनको आप गवर्न कर रहे हो, उनके पास भी तो अधिकार है कि वो बताएं उन्हें कैसे गवर्न होना है. जैसे हम अपने लीडर्स चुनते हैं, हम एमपीज चुनते हैं, हम एमएलए चुनते हैं, हम कुछ भी चुनते हैं, काउंसलर चुनते हैं, महापौर चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, हम किसी को भी चुनते हैं, हम किस आधार पर चुनते हैं कि आप हमें गवर्न करो. तो आप भी तो हमसे पूछो हमें गवर्न कैसे होना है. यू डोंट इवन थिंक, यू जस्ट आस्क अस वंस इन 5 years. That is not how we want to be governed. People have a right to be consulted on how they have to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in this system. एक legitimate होता है, legitimate is official, the correct way. The legitimate is how सही सरकार वही होगी जहां आप हर सिटीजन से पूछो, उनका पार्टिसिपेशन लो, उनका सिस्टम, उनका साथ लो सिस्टम बनाने में. That is the legitimate government. करेक्ट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जहां सब लोग जो उस डिसीजन से इफेक्ट हो रहे हैं वो उसको बनाने में भी इन्वॉल्व होंगे. Do you understand? These are the moral reasons and these are the prudential reasons. Prudential means facts, तथ्यों के आधार पर ये reasons हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होनी चाहिए, और कॉन्शियस मोरल के आधार पर ये reasons हैं कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल होनी चाहिए. Moving forward, you can mark 1, 2, 3, 4 points. I'm just getting a sign. Screenshot.
ये विक्रम बेताल की कोई स्टोरी है. You can read this. It is of no use. So that's why I'm not reading it. Yeah, you can read the story. It's not important. Last part of chapter, that is forms of power sharing. Power sharing के forms क्या होते हैं? Let's complete this fast in 15 minutes. See, forms of power sharing. See, forms of power sharing. Power sharing के different forms क्या होते हैं? The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of the public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. पहले माना जाता था कि पावर केवल कुछ हैंड्स में होनी चाहिए, चाहे एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, चाहे सिंगल पीपल हो. क्यों होना चाहिए था? इसलिए सिंगल कोई भी इंसान हो या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो, क्योंकि उन्हें लगता था ऐसे में डिसीजन ले पाएंगे. पावर बांटेंगे तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम जाएगी. बट विद द इमर्जेंस ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी, वहां पर रिप्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया कि सबको रिप्रेजेंट, सबको पार्टिसिपेशन मिलो, सबको पावर मेकिंग मिलो, सबको सरकार बनाने मिलो, सबको सिस्टम बनाने मिलो. तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही होती है जहां आप लोगों को सुनो. जितने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर पाओ डिसीजन मेकिंग में, उतनी अच्छी डेमोक्रेसी होगी. समझ आए? बिकॉज पीपल विल देमसेल्व्स टेल कि उनको कैसे गवर्न होना है. उनसे पूछो उनको कैसे गवर्न होना है. And don't ask after 5 years. If we take the example of our country, many leaders only come to remember कि उनको लोगों को गवर्न करना है 5 साल में. नहीं, 5 साल के हर दिन में you should involve people in decision making. You should ask people who are affected by the decision, directly or indirectly. So पावर शेयरिंग, पावर शेयर करना चाहिए. डेमोक्रेसी का एसेंस है जितने लोगों तक पावर बांट सको डिसीजन मेकिंग की, उतने लोगों तक बांटो. बिकॉज डेमोक्रेसी का आधार ही प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर. ये जितना पावर प्ले पॉलिटिक्स का कर रहे हो, पावर प्ले हो गया, पॉलिटिक्स जो भी है, उसका सोर्स ही पीपल हैं. पीपल आर इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. लोग इंपॉर्टेंट है, लोग का वोट इंपॉर्टेंट है, लोगों का बोलना इंपॉर्टेंट है, लोगों का मत इंपॉर्टेंट है कि हाउ दे वांट टू बी गवर्न. लोगों का व्यू इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द वंस हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी. सो हाउ पावर इज शेयर्ड इन इंडिया? लेट्स सी. मतलब इंडिया हो गया या और भी कोई गवर्नमेंट हो गई, इंडिया का एग्जाम्पल देकर उन्हें बताया कि हाउ पावर इज शेयर. तो पावर कैसे शेयर होती है? लेट्स सी. फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आएगा. आपको चारों पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट, power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balances. This is known as horizontal form of power sharing. Power sharing, PSS. This is
हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किसी भी देश में इंस्टीट्यूशंस बांटे जाते हैं जो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, क्योंकि सब लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल होता है दिस, वर्टिकल होता है दिस, जो आड़े में से लेटिव होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल, एंड व्हिच इज इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट, खड़ा हुआ, दैट इज नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सब एक साथ एक ही लेवल पे हैं, कोई भी किसी से भी ऊपर नहीं है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ऑल द थ्री हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पावर बट इन डिफरेंट अरीनास। सबके पास ऑलमोस्ट एक लेवल की पावर होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। लेजिस्लेटिव के पास भी अपने लेवल पे बहुत पावर होगी, एग्जीक्यूटिव के पास भी और जुडिशरी के पास भी, सबके पास एक लेवल ऑफ पावर होती है, बस डिफरेंट डिफरेंट अरीना में होती है, डिफरेंट डिफरेंट काम में होती है। और एक, क्योंकि लगभग सबके पास सेम पावर है, तो ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक कर लेता है, ये इसको चेक कर लेता है, ये इसको चेक कर लेता है, सब आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कोई भी अपनी पावर ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि सबकी सेम ही पावर है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून पालन करवाने का। जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया टू सी द फंक्शनिंग। लेजिस्लेचर वन हु मेक्स लॉस, एग्जीक्यूटिव वन हु इंप्लीमेंट्स लॉस। इनको लिखते जाना, वन हु इंप्लीमेंट्स लॉस। Judiciary is the system of courts in India. In a system of courts anywhere is judiciary. India में इसकी hierarchy क्या होती है? District court, high court, Supreme Court. District is at the district level, also called metropolitan court, sub-magistral court, different names. That is at the local level. Then high court of every state, and then Supreme Court. The apex court of India, apex, A-P-E-X, highest court of any, highest court is known as apex court. That is Supreme Court of India in case of India. समझ आया? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे सब एक ही लेवल पे, सबके पास ऑलमोस्ट सेम पावर है, बस डिफरेंट डिफरेंट अरीना में है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून पालन करवाएगा, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव बॉडी, द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव, कानून कौन पालन करवाएगा? ब्यूरोक्रेसी, पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आईएएस, आईपीएस एंड ऑल इन्वॉल्व्ड इन इंप्लीमेंटिंग इज एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पहले तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है, जहां हॉरिजॉन्टली पावर शेयर की जाती है, सेम लेवल ऑफ पावर बस डिफरेंट अरीना में, सबके पास ऑलमोस्ट सेम पावर होती है। और दिस इज आल्सो नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि सबके पास सेम पावर है, तो सब एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देखता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जुडिशरी को, सब आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, हेंस इट इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। Moving forward. Second is vertical form of power sharing. Power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called the federal government. In India, we refer to it as central or union government. The governments at the provincial or regional levels are called by different names in different countries. In different countries. In India, we call them state government. This system in India, we call them state government. This system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. Let us recall division of power involving higher and local levels of government. Vertical division of power, we shall study these in some length in the next chapter. पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या था? पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पे
हॉरिजॉन्टली सब एक ही लेवल पे रहते हैं, बस डिफरेंट अरीना में पावर रहती है उनके पास, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दूसरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल होता है एक लैडर के फॉर्म में, सीढ़ी की टाइप में, जहां एक किसी के ऊपर पक्का होगा और एक किसी के नीचे पक्का होगा। दिस इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, व्हेन वन इज अबव द अदर एंड अनदर इज डाउन द अदर, नॉट एवरीबडी इज एट द सेम लेवल, दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। किसी भी देश में देखें तो सबसे ऊपर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, तीसरे नंबर पे लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। आई डोंट नो व्हाट लोकल इज कॉल्ड इन हिंदी, I don't know what local is called in Hindi. Okay, see, central government, केंद्र सरकार, state government, राज्य सरकार, and then local government at the local level. This is ladder के फॉर्म में, एक के ऊपर एक है, एक एक के ऊपर है, एक एक के नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है. So this is first, this is second, this is third. This is known as vertical form of power sharing. खड़े में मतलब जहां कोई किसी के ऊपर है और कोई किसी के नीचे. They don't have similar amount of power, but they have power in different forms. सेंट्रल गवर्नमेंट, एक देश की सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक देश की केंद्र सरकार होती है, हमारे यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, अमेरिका में से फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है. सो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट. देन नेक्स्ट स्टेट्स जो डिविजन्स किए जाते हैं, या तो कुछ कुछ देशों में प्रोविंसेस में डिवीजन किए जाते हैं, हमारे यहाँ जैसे स्टेट्स में डिवीजन किए गए, और भी अलग अलग प्रकार के डिवीजन. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक कंट्री में किए, हर उस डिवीजन की सरकार स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी, उस डिवीजन की सरकार. उससे भी नीचे लेवल पे अगर डिवीजन किए गए तो देन लोकल गवर्नमेंट. दिस इज नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयर. इसको आप डेप्थ में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. एंड दिस वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का ही दूसरा नाम होता है फेडरलिज्म. ये जो फेडरलिज्म जो आप अगला नेक्स्ट आपका चैप्टर है, ये ही वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का दूसरा नाम होता है फेडरलिज्म. यू अंडरस्टैंड? एंड दिस वी विल स्टडी इन डेप्थ. अब हर लेवल पे क्या किसके पास पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन रहता है. सेंट्रल लेवल के पास क्या पावर होगी, लोकल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया जाता है. क्यों किया जाता है इसका रीजन आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में. Third form of power sharing. Wait. Third form of power sharing. Power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are representative in the legislature and administration. Last year, we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of a country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups of that country. तीसरी पहली form of power sharing, horizontal form of power sharing. दूसरी form of power sharing, vertical form of power sharing. तीसरी form of power sharing, power may be shared among different social and linguistic groups. समाज के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में पावर देना, जैसे विमेन्स को रिजर्वेशन देना, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखना. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां किसी एक कम्युनिटी के लोग ही रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एससीज और एसटीज, एनीबडी, दे आर गिवन रिजर्वेशन फॉर दैट सीट, क्योंकि अगर इन्हें रिजर्वेशन ना दे तो हो सकता है इन्हें रिप्रेजेंटेशन का मौका ही ना मिले. तो अलग समाज के अलग सोशल ग्रुप्स को, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को और रिलीजियस ग्रुप्स को पावर देना पावर शेयरिंग का तीसरा फॉर्म है. अलग अलग अगर रिलीजन है, देश में बहुत सारे रिलीजन है, तो हर रिलीजन को थोड़ा पावर देना उनके रिलीजियस ग्रुप्स को. वो हो गया सोशल ग्रुप, समाज के लोग, जैसे विमेन हो गई, वुमेन इज अ सोशल ग्रुप, चिल्ड्रन इज अ सोशल ग्रुप. लिंग्विस्टिक ग्रुप, किसी भी लैंग्वेज के आधार पर पावर देना किसी ग्रुप को, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट दी थी बेल्जियम में कि डच स्पीकिंग पीपल को पावर दी, इस कम्युनिटी को, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को पावर दी, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी को पावर दी. तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पावर देना थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आता है. फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री, क्योंकि जो उस कम्युनिटी का है, जो उस रिलीजन का है, जो उस लिंग्विस्टिक ग्रुप का है, उनको उनकी प्रॉब्लम बेस्ट समझ आती है. You cannot understand their problem completely, but people from their own community can understand their problem. Hence, power is given. Fourth, power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence power in their country.
influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders of power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures the power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more political parties form an alliance to contest election. In this alliance, if this alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracy, we find in different defined interest groups such as those traders, businessmen, industrialists, farmers, industrial workers. They also will have a share in the governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. चौथा आपका पावर शेयरिंग कहाँ होगा? पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पावर देना. अगर एक कंट्री में एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और एक ही पार्टी जीत जाती है और एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहेगी तो फिर उसका क्या फायदा? मतलब अगर आप एक्चुअली सही काम कर रहे हो तो आप तो एनीवेज भी इलेक्शन में जीतोगे, बट अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन का चांस ही नहीं मिल रहा है, देन द वोटर्स आर नॉट इवन गिवन अ चॉइस. तो हेंस पार्टीज को पावर दी जाती है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आए, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने साथ अपनी क्या लेके आती है? आइडियोलॉजी लेके आती है. तो जब डिफरेंट पार्टीज के पास पावर होती है तो सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी रख सकते हैं ताकि देश बेस्ट तरीके से रूल हो सके. और जब बहुत सारी पार्टीज एक साथ मिलके, मतलब एक से ज्यादा पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, देन दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट. लाइक राइट नाउ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज, नॉट अ सिंगल पार्टी हैड अ मेजॉरिटी, नॉट अ सिंगल पार्टी कुड क्रॉस द जो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है 572.5, इतनी सीट के ऊपर सीट होना चाहिए किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए. इतनी किसी भी पार्टी के पास नहीं थी, तो पार्टीज ने मिलकर कोलिएशन की सरकार बनाई. सो राइट नाउ द गवर्नमेंट इन योर कंट्री इज अ कोलिएशन गवर्नमेंट. व्हेन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट इज नोन एज अ कोलिएशन गवर्नमेंट. प्रेशर ग्रुप्स को पावर देना. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? समाज के वो ग्रुप्स जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं. प्रेशर एज इन कि वो अपनी बात रखते हैं आगे. डिफरेंट कुछ भी, कोई भी मुद्दा हुआ, जैसे वुमेन्स राइट के इश्यूज का मुद्दा हो गया या किसी भी चीज का, चाइल्ड लेबर का मुद्दा हो गया, कोई अगर इस पे अपना एक ग्रुप बनाता है एंड दे पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे, दोज आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स. एंड मूवमेंट्स, डिफरेंट मूवमेंट्स को भी जगह देनी चाहिए पावर्स के लिए, क्योंकि जब मूवमेंट्स होते हैं तभी डिस्क्रिमिनेशन बाहर आता है कि कौन सी कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है, किस कम्युनिटी की बात सुननी चाहिए, किस कम्युनिटी को नीड है कि उसकी बात सुनी जाए, एड्रेस करी जाए. सो दीज आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. डिफरेंट ग्रुप्स को भी पावर देनी चाहिए. इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि सब इकोनॉमी का पार्ट है, सब इकोनॉमी को एड्रेस कर रहे हैं, सब एक देश का पार्ट है, सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो एवरीबडी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सबकी बात सुननी चाहिए. So these were 4 forms of power sharing. First was horizontal form of power sharing, where the power is shared between legislature, executive, judiciary. It is also known as a system of checks and balances. Second is the power sharing, vertical form of power sharing, central level, state level, local level. Third, power sharing between different social groups, linguistic group, regional groups, community groups in any country. Fourth is power sharing between political parties, pressure groups, and different groups, movements, and other peoples in the country. Other people in the country. Done with your chapter. We'll do exercises separately. इनकी exercises भी कराऊंगी मैं NCERT की, but separate, different video. So this was my chapter of power sharing, and once you understand my chapter nicely with everything, मतलब go all in, अगर आप ढंग से ये chapter मेरा समझते हो, आराम से समझना, एक एक लाइन समझना, I am sure you need no other lecture. I'll myself make you do these exercises as well. आपको मैं अलग से क्वेश्चंस भी दे दूंगी, एंड फॉर पास्ट 2-3 years आई एम सेइंग व्हिच आई गिव द क्वेश्चंस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Almost all questions come from them only. I'm not bragging, I'll just give you the questions you can see. So I'll give you those questions also. Just be very attentive, understand clearly, अच्छे से पढ़ाई करो और 2026 एग्जाम्स में टॉप करो. So bye guys, I'm going. This was power sharing with Anubhuti, and please like my videos, comment on my videos, subscribe my channel, and be interactive so that I can go for live classes as well. Bye students, take care and study. बहुत पढ़ो and conquer your 2026 board exams. Bye.